Good morning students. Now we continue our chapter 12 wave theory and our next topic is proof of reflection by Huygens wave theory. Huygens wave theory के बेस पर हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन का प्रूफ किया है, तो Huygens wave theory के बेस पर ही हम रिफ्लेक्शन को समझेंगे. Huygens wave theory सेकेंडरी वेवलेट्स पर बेस्ड है, तो उसी को लेते हुए हम यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे. तो फर्स्टली वी टेक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस वन is the reflecting surface, and we know very well that in reflecting surface one side will be polished. जो one side होगी वो completely polished होगी reflecting surface. तो firstly we take a reflecting surface MN. Okay, now we incidence a plane wave front AB. This is the plane wave front AB. On it, this plane wave front A B, this is your incidence point. Okay, so this plane wave front AB incidence on the reflecting surface MN. Now this is your normal and this is your angle of incidence. Now we know very well that we supposed that this reflecting surface are perpendicular to this board. That means just like this reflecting surface is this, इस तरह से reflecting surface होगा आपका u कह सकते हैं हम, इस तरह से बाहर निकला हुआ, और इसके ऊपर ये wave front आकर perpendicularly incidence हो रहा है. ओके, तो this one, ये जो wave front है आपका, ये आपके इस surface के perpendicular है. ओके, now this B point, when this A reaches at point A, now this point B moving in this medium at velocity v and time interval delta t. तो ये जो पॉइंट B है, अब पॉइंट B डैश पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए पहुंच रहा है, v डेल्टा t डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ये पॉइंट B डैश पर रीच करता है. ओके, तो नाउ दिस velocity v in this medium are same. The secondary wavelet principle, हाइगेन का जो secondary wavelet principle है वो ये कहता है कि जब पॉइंट B यहाँ रीच करेगा तो this point A इसकी पोजीशन क्या होगी. तो इस पोजीशन को नॉन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये v डेल्टा t जो है, इस v डेल्टा t का एक डिस्टेंस लेकर एक सेमी स्फीयर यहाँ ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ दिस सेमी स्फीयर डिस्टेंस ऑफ v डेल्टा t, ओके, एंड अ कॉमन वेव फ्रंट जिसे हम कहते हैं यहाँ पर अ कॉमन टेंजेंट ड्रॉ बाय द B dash at this point. So now this is your A B dash and this point is C. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, this is A dash, sorry, this is called the A dash. Okay, so now here the A dash B dash is your secondary wavefront of the primary wavefront is A. Again we start, we take a reflecting surface MN, incidence a plane wavefront AB on it. Now when B reaches at B dash, traveling the distance V delta t, and we want to know the shape of the secondary wavelet, so we take the distance V delta t as a R and draw a semi-sphere and a common tangent from B dash draw on this point. Okay, so now here we see that we see some assumptions that this normal are perpendicular to this surface. Okay, and this is also perpendicular because these are the wavefront. This is I and this is your 90 minus I. Okay, this is your 90 minus I. Now this value, this is your 90 minus I, then this value, this is also 90, then this angle is I. Okay, similarly here we see that this angle is 90 and this is also 90. Okay, because the wavefront makes an angle 90 degree. Okay, this distance is similar. This is your V delta t
Okay, and this is your also V delta t, and this is a common line in between the triangle A B B dash and A dash B dash. So we say that these both triangles are congruent. How it is possible? So here we see that the triangle A dash B dash congruent of triangle A B B dash. How it is possible? तो सबसे पहले तो एंगल A dash B dash equals to angle A B B dash equals to 90 degree. Now A B dash is common side and A dash equals to B dash equals to B delta t. So we say that both triangles are congruent. Okay, now we see some assumptions here that this is your angle of incidence. Now this wave, this is your plane wave front. Okay, and this is your angle of reflection. Now this is also a 90 degree angle, so it makes 90 minus r, and this normal makes the 90 degree to this reflecting surface, so remaining angle is also r. So here we see that when these triangles are congruent, then इस साइड के सामने का एंगल दिस इज एंगल ऑफ r, और इस साइड के सामने का एंगल दिस इज एंगल ऑफ i, बोथ आर इक्वल. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उस कंडीशन में बाय CCPT मेथड, ओके, तो बाय CCPT here the angle of I equals to angle of r, which shows रिफ्लेक्शन. क्या शो करता है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन को शो करता है. ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ हाइगेन प्रिंसिपल से इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं. जो पहले हमारे प्रॉब्लम आई थी कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूव करने में, तो यहाँ पर these three things are same, so these two triangles becomes congruent. So this is your proof of reflection by the Huygens wave theory. Okay, now we take another topic. Superposition principle. What is the superposition principle? The superposition principle says that when the two or more than two waves are traveling or propagating in the same direction, then the resultant displacement of these waves are equals to the sum of individual displacement of each wave. So this is your superposition principle. तो every place चैप्टर 1 में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, 11 के अंदर जो वेव चैप्टर था उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज वी हैव अ प्लेन xy, this one, and this is your wave. The displacement of this wave is y1, and this displacement is y2. Now this is your resultant wave, y equals to y1 plus y2.
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज that when two or more than two waves travels in same direction and superpose at a point, किसी particular point पर अगर superposed होती हैं तो superposed at a point, then the resultant displacement is equals to the algebraic sum of individual displacement of the wave. तो यहाँ पर फिर ये जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर ये सुपरपोज हो रही है वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा. So this is your superposition principle. Okay, so now we take some wave terminology. वेव टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर काम में लेते हैं क्योंकि वेव टर्मिनोलॉजी हमारे आगे काम में आएगी तो इसको थोड़ा हमें समझना है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ में आ गया होगा आपको कि जहां पर टू और मोर देन टू वेव्स आकर मैच कर जाती हैं उस जगह पर जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा. तो अब यहाँ पर हम कुछ वेव टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं. तो दिस वन योर वेव टर्मिनोलॉजी. वेव टर्मिनोलॉजी, इस वेव टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम काम में लेते हैं फेज. फेज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? तो जब हम फेज की बात करते हैं तो फेज है क्या? तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेव पर, जैसे ये वेव है, इस वेव पर अब वेव किससे बनती है? पार्टिकल्स से. तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है या जिस क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज योर फेज. यानी फेज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ वेव. वेव पर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर जैसे हम पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू, क्योंकि ये वेव कौन सी वेव है? a sin ओमेगा t. ये साइन वेव क्या है? इस वेव को कौन सी वेव कहते हैं? साइन वेव. क्यों? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से. और अगर ये वेव इस तरह से होती है तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये कौन सी वेव कहलाती है? दिस इज द कोसाइन वेव. तो जब भी हम कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो इन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वी रिप्रेजेंट द साइन और कोसाइन. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर जो साइन और कोसाइन होते हैं यही इसको रिप्रेजेंट करते हैं फेज. तो इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव क्वोशिएंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर कॉल्ड फेज. जैसे हमने यहाँ पर बात की जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले ली y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. तो यहाँ पर जो साइन का क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कौन है साइन का? ओमेगा t. तो यहाँ पर ओमेगा t इज कॉल्ड फेज. तो इस ओमेगा t को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं. तो क्लियर है कि किसी भी वेव के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी और उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में साइन आ जाए, कॉस आ जाए, तो इस साइन और कॉस का जो क्वोशिएंट होगा वही आपका क्या कहलाता है? फेज कहलाता है. ओके. इसके बाद में एक डेफिनेशन आती है आपकी फेज डिफरेंस. एक डेफिनेशन आपकी निकल जाती है यहाँ पर फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस की बात करते हैं हम तो हम ये कहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टू वेव्स, टू और मोर देन टू वेव्स हैं, ये मूव कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. किसी एक पॉइंट पर ये दोनों वेव्स आकर मीट हुई, वहां सुपरपोजिशन हुआ तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया. अब सपोज वी हैव अ टू वेव्स. समझिएगा. फर्स्ट वन y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi इज द फेज एंगल. फाई को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? फेज एंगल. फेज एंगल मतलब वो पार्टिकल जिसकी पोजीशन हमें इवैल्यूएट करनी है वेव पे वो कितने एंगल पे. दिस इज कॉल्ड योर फेज एंगल. ठीक है. जैसे एक पर्टिकुलर वेव मैंने यहाँ बना दी दिस वन. अब यहाँ पर सपोज दैट पार्टिकल यहाँ है तो ये पार्टिकल कितने एंगल पे, जैसे सपोज ये 0, ये पाई, ये π/2, तो ये क्या कहलाता है हमारा? फेज एंगल. ये फाई कहलाता है. ओके. तो दिस इज कॉल्ड योर फेज एंगल. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वेव हमने ली उसका फेज एंगल कितना था? φ1. सेकंड वेव हमने ली उसका फेज एंगल कितना था? φ2. अब यहाँ पर जो क्वोशिएंट आए हैं साइन और कोसेक के, ये क्या कहलाएंगे? फेज. मैंने अभी डिफाइन किया इसको. ये क्या कहलाएंगे? फेज. हमें निकालना क्या है? फेज डिफरेंस. तो द डिफरेंस इन क्वोशिएंट ऑफ साइन और कोसाइन is called phase difference. तो जब हम यहाँ फेज डिफरेंस की हम बात करते हैं तो फेज डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं? दिस इज डेल्टा phi इक्वल्स टू
ओमेगा टी प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन। ओके, तो हियर ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, देन योर फेज डिफरेंस इज फाई टू माइनस फाई। तो कुल मिलाकर फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस किसी भी एंगल, जो फेज एंगल हम लोग निकालते हैं, उन फेज एंगल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस कहलाता है। ओके, इसी की एक टर्मिनोलॉजी आती है पाथ डिफरेंस। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको समझते चलिएगा। इसके बाद में हमारी टर्मिनोलॉजी आती है पाथ डिफरेंस। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? जब हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो टू वेव्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच करते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच करते टाइम पर उस वेव ने कितनी लेंथ ट्रेवल की, या उस पाथ को कवर करने में उस वेव ने कितनी लेंथ ट्रेवल की, तो उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम कहते हैं डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पाथ ऑफ टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और जब हम पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली याद रखना है। पाथ डिफरेंस का जो सिंबल होता है दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। यानी अगर हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो 2 पाई इनटू 5। तो दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हमारे काम में आएगा। तो ये वेव टर्मिनोलॉजी थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन आवर टॉपिक इज कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज एंड इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।